آج چھٹی کا دن تھا اور میں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ جب میرے کانوں میں فاطمہ کی آواز پڑی۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا، میاں جی 8 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں، مالکن آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھتے ہی میں یہ سوچنے لگا کہ آج تو چھٹی کا دن تھا، پر فاطمہ نے آخر مجھے آج کیوں جگا دیا۔ تبھی فاطمہ نے مجھے بتایا کہ مالکن نے آپ کو بنگلے میں بلایا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر میں بنگلے کے اندر جانے لگا تو مجھے فاطمہ نے کہا کہ ناشتہ تو کرتے جائیں۔ میں نے فاطمہ کی بات سنی اور خاموشی سے بنگلے کے اندر جانے لگا۔ اجازت لیتے ہوئے جیسے ہی میں اندر گیا، مالکن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ کافی دیر پہلے پیغام بھیجا تھا اور تم اب آ رہے ہو۔ میں نے مالکن کو عرض کیا کہ میں سو رہا تھا۔ فاطمہ نے مجھے جیسے ہی آپ کا پیغام دیا تو میں فوراً سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر آپ کی بات سننے کے لیے آ گیا۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے مالکن سے پوچھا تھا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی تو وہ مجھے سامان بازار سے لا دو۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لسٹ دے دیں، میں سارا سامان لا دیتا ہوں۔ کہ تبھی مالکن کی بیٹی تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، انکل مجھے بھی کچھ سامان منگوانا ہے، آپ مجھے بھی وہ سامان لا دیں، میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں۔ مالکن کے ساتھ ساتھ مالکن کی بیٹی بھی ایک لسٹ تیار کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی نے لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور سامان کے لیے 5000 کا نوٹ مجھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ جاؤ یہ سامان بازار سے لا دو۔ میں سامان لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ ویسے تو میرا کام صرف مالکن کی بیٹی کو کالج لانے اور لے جانے کا تھا، لیکن چھٹی والے دن یا ویسے اگر کوئی گھر میں کام نکل آتا تو کوئی سامان منگوانا ہوتا تو مالکن مجھ سے ہی منگواتی تھی۔ میں بازار گیا اور سارا سامان لا کر مالکن کو دے دیا۔ مالکن کی بیٹی فوراً سے پہلے مجھ سے کہنے لگی، انکل میری چیزیں لے کر آئے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مالکن کی بیٹی کو جواب دیا۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنا اپنا سامان مجھ سے لیا اور خوش ہو گئی۔ میں نے بچے ہوئے پیسے مالکن کو پکڑائے اور جانے کی اجازت لی۔ مالکن میری ایمانداری سے بے حد خوش تھی۔ مالکن نے بچے ہوئے پیسوں میں سے 1000 کا نوٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور مجھے کہا کہ آج چھٹی کا دن ہے، جاؤ تم بھی کہیں باہر سے ناشتہ لے کر آؤ اور اپنے بیوی بچوں کو آج اچھا ناشتہ کراؤ۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مالکن میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی مالکن کی کہی ہوئی کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ میں نے جلدی سے پیسے پکڑے اور کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ مجھے کوارٹر مالکن نے دے رکھا تھا۔ آج صبح میں مالکن کی بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا، تبھی میں نے مالکن کی بیٹی کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی کے ساتھ بہت ہی سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ میں اکثر مالکن کی بیٹی کی یہ حرکتیں دیکھتا لیکن خاموشی اختیار کر جاتا، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے طور طریقے بھی بہت الگ تھے۔ میں کبھی بھی مالکن کو کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں مالکن کو چھوٹی بیوی کی کوئی شکایت لگاتا تو چھوٹا منہ بڑی بات والا حساب ہو جاتا اور میری نوکری خطرے میں آ جاتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک اپنی بیٹی کے بارے میں میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی برداشت کریں گی یا نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں چھوٹی بیوی کی ہر حرکت کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اکثر مالکن مجھ سے کہتی کہ دیکھو چھوٹی بیوی تمہاری ذمہ داری ہے، اب ان کو لے کر آنا اور جانا، ان کا خیال رکھنا، ہر مصیبت اور پریشانی سے اس کو بچا کر رکھنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ مگر میں ڈر کے مارے مالکن سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں خود ابھی نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بیوی کے ارادے آخر ہیں کیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں مالکن کی بیٹی کو کالج چھوڑنے جاتا اور کالج ذمہ داری کے ساتھ واپس گھر لے کر آتا۔ مگر ایک دن جب میں کالج کے گیٹ کے باہر مالکن کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا
جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی میں نے مالکن کی بیٹی کو کالج سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ آج چھوٹی بی بی نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے چھوٹی بی بی کو کالج سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، مگر وہ پیدل نہیں تھی۔ میں نے چھوٹی بی بی کو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھے کالج سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں خاموشی سے اس موٹر سائیکل کا پیچھا کرنے لگا۔ میں مسلسل موٹر سائیکل کا پیچھا کر رہا تھا اور موٹر سائیکل پر بیٹھا لڑکا بغیر موٹر سائیکل روکے تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل ایک ویران جگہ کی طرف جانے لگی۔ میں بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل جھاڑیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ میں ایک بنگلے پر ڈرائیور تھا۔ مالکن کی جوان بیٹی کو کالج لانا اور لے جانا میری ذمہ داری تھی، لیکن ایک دن میں کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا رہا۔ مالکن کی بیٹی نہیں آئی۔ میں پریشان سا واپس آنے لگا جب میں نے اسے ایک لڑکے کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی جب وہ دونوں ایک ویران سی جگہ پر چلے گئے۔ جیسے ہی میں چپکے سے ان کے پیچھے گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں جھاڑیوں کے پیچھے میرا نام کامران ہے اور میں شیخو پورہ کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں۔ میں اور میری اماں گاؤں میں ہی رہتے تھے، جبکہ ابا لاہور شہر میں ایک بنگلے کے ڈرائیور تھے اور ابا اسی بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب ابا نے مجھے اور اماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بنگلے میں پچھلی سائٹ پر ابا کے مالکان نے ایک بہت ہی خوبصورت کوارٹر بنا رکھا تھا جو ابا کو دیا گیا تھا، اسی لیے ابا مجھے اور اماں کو بھی اسی کوارٹر میں لے کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ابا کے مالک نے ابا سے کہا تھا کہ تم اپنی فیملی بھی یہیں پر لے آؤ۔ ابا بہت ہی خوددار اور ایماندار ڈرائیور تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابا مجھے اور اماں کو بھی لاہور شہر کے اسی بنگلے میں لے گئے۔ اب ہم ابا کے ساتھ ہی بنگلے میں بنے ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ابا نے مجھے مالک کی اجازت سے ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ مالک میرے اسکول کی فیس ادا کرتے تھے اور مالکن بھی مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ اماں اور ابا بنگلے کا کام کرتے، اماں مالکن کے گھر کا کام کرتی تھی، جبکہ ابا ایک ڈرائیور تھے۔ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ ابا گھر کا سودا سلف لانے میں بھی مالک کا بہت ساتھ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی خودداری اور ایمانداری مالک اور مالکن کو بہت پسند تھی، اور وہ اسی وجہ سے ابا کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ رکھتے تھے۔ تنخواہ کے علاوہ بھی ابا کو اکثر انعام کے طور پر مالک اور مالکن سے پیسے ملتے رہتے تھے۔ میں نے بنگلے میں رہتے ہوئے ہی اپنا میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، جبکہ ابا مجھے اپنے ساتھ کام میں لگوانا چاہتے تھے۔ ابا ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھاتے رہتے کہ ہمارا اونچے لوگوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ میں بنگلے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیشہ ابا سے کہتا تھا کہ بنگلے میں رہتے بچے بھی تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو ابا ہمیشہ میری اس بات پر مجھے ٹوک دیتے اور کہتے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم بنگلے کے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ بنگلے میں مالک کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک میری ہم عمر ہی تھی اور دوسری ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میں چھوٹا تھا، اسی لیے ہر وقت خود کو مالکن کی بڑی بیٹی کے ساتھ کمپیئر کرتا رہتا، تو ابا سے ہمیشہ اپنی اس حرکت سے ڈانٹ ہی کھاتا نظر آتا تھا۔ ابا مجھے ہمیشہ کہتے کہ مالک لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں وہ ہمارے مالک ہی رہیں گے اور ہم ہر حال میں ان کے نوکر ہی کہلائیں گے، اس لیے تم بڑی بیوی کے ساتھ اپنا مقابلہ مت کیا کرو۔ میں روتا اور اماں سے ابا کے اس رویے کا ہمیشہ گلہ کرتا اور کہتا کہ ابا نے خود ساری زندگی نوکر بن کر گزار دی ہے، اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں بھی ساری زندگی نوکر بن کر ہی گزاروں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا
میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کام ساری زندگی میرے باپ نے کیا ہے میں بھی اسی کام کو لے کر آگے بڑھوں، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے خواب سب اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے تھے جب اچانک سے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا مجھے لے کر اکثر پریشان رہتے تھے اور اماں سے کہتے تھے جیسے میں نے آج تک اپنے مالک کے آگے سر نہیں اٹھایا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کامران بھی میری ہی طرح مالک اور مالکن کا خیال رکھے، اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور اس گھر کے ہر حکم کو مانے، اور یہ ثابت کر کے دکھائے کہ یہ خوددار اور ایماندار باپ کا بیٹا ہے۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی، لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن ابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا کہ ان کے انتقال کے بعد میں ان کی جگہ کام کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ابا کے انتقال کے بعد میں ابا کی جگہ پر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگا۔ بڑی بیوی میری ہم عمر تھی۔ مالکن کی بڑی بیٹی نے میرے ساتھ ہی میٹرک کا امتحان بہت ہی اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی جبکہ وہ آگے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں ایک نارمل سے اسکول سے پڑھا تھا، میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ابا نے مجھے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہی گاڑی چلانا سکھا دی تھی۔ مجھے گاڑی چلانی آتی تھی، لیکن مالک ابھی مجھے گاڑی چلانے نہیں دیتے تھے۔ مالک کہتے تھے کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ تو پھر تم نے ہی چلانی ہے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے گاڑی دی جاتی تھی، لیکن بڑی بیوی اور چھوٹی بیوی کو اسکول کالج لانے لے جانے کے لیے مجھے گاڑی نہیں دی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مالک مجھ سے مطمئن ہونے لگے۔ اس طرح پھر مالک نے مکمل طور پر گاڑی میرے حوالے کر دی تھی۔ اب میں بنگلے کا ہر کام کرنے لگا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کی طرح بہت خوددار اور ایماندار ڈرائیور تھا۔ باہر کے سارے کام مالکن مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ ابا کی طرح مالکن میرے ساتھ بھی بہت شفقت سے پیش آتی اور ہمیشہ انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہتی تھی۔ اماں میرے اس کام سے بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اماں مجھ سے کہتی تھی کہ تمہیں اس طرح بنگلے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر تمہارے باپ کی روح کو بہت سکون ملتا ہوگا۔ میں نے سچائی کو بہت جلدی مان لیا تھا کہ میں ایک ڈرائیور سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوں۔ اب میں نے اس کام کو اپنا نصیب مان لیا تھا اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں اس کام کو لے کر چل رہا تھا۔ اماں نے کہا کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے تمہاری خالہ سے ملنے کو، تو کیا تم مجھے اپنی خالہ سے ملوانے کچھ دیر کے لیے گاؤں لے چلو گے؟ چھٹی کا دن تھا۔ میں نے مالک کو بتایا کہ میں اماں کے ساتھ گاؤں جانا چاہتا ہوں، کل صبح سے پہلے واپس لوٹ آؤں گا۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ کس پر جا رہے ہو؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں بس پر جا رہا ہوں تو مجھ سے کہنے لگے کہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی گاڑی تم لے جاؤ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میں نے مالک کو بہت منع کیا کہ میں گاڑی لے کر نہیں جاتا، میں لوکل ہی سے چلا جاؤں گا۔ مالک کہنے لگے کمال بات کرتے ہو، تمہاری ماں کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی اور تم اپنی ماں کو لوکل سفر مت کراؤ، ایک رات کی تو بات ہے، اپنی گاڑی میں جاؤ گے تو صبح ٹائم سے واپس بھی آ پاؤ گے، لوکل پر گئے تو نہ جانے کس وقت واپس پہنچو۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ چھوٹی اور بڑی بیوی نے بھی اسکول اور کالج جانا ہے، اس لیے تمہارا وقت پر آنا بہت ضروری ہے۔ مالک کے بہت اصرار کرنے پر میں ان کی گاڑی لے کر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں اور اماں چھوٹی گاڑی لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم 1.5 گھنٹے میں ہی گاؤں پہنچ گئے تھے۔ خالہ مجھے اور اماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور اماں اور خالہ نے بچپن ہی میں میری اور فاطمہ کی منگنی کر دی تھی۔ اماں کی طبیعت تو اب اکثر خراب رہتی تھی، اس لیے اماں خالہ سے یہ بات کرنے کے لیے آئی تھی کہ اب فاطمہ کو دلہن بنا کر رخصت کر دو۔ خالہ نے اماں سے کہا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، سادہ نکاح کر کے بھیج دیتی ہوں۔ اماں نے خالہ سے کہا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس تم نکاح کی تیاری کرو اور فاطمہ کو اچھے طریقے سے رخصت کر کے اپنا فرض پورا کرو۔
तभी मेरी निकाह की तारीख मुकर्रर की गई। सुबह होते ही मैं अम्मा को लेकर वापस आ गया था। मैं सारी रात नहीं सोया था। सफ़र ने मुझे बहुत थका दिया था। मैं बड़ी और छोटी बीबी का इंतज़ार कर रहा था कि उन्हें स्कूल और कॉलेज छोड़कर फिर आकर सुकून से सोऊंगा। तभी बड़ी बीबी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, कामरान अंकल हमें छोड़ आए। मैं बड़ी बीबी की आवाज़ सुनते ही जल्दी से उठा और जाकर जल्दी से गाड़ी निकाली और बड़ी और छोटी बीबी को छोड़ने के लिए जाने लगा। रास्ते में मैं सोच रहा था कि बड़ी बीबी मेरी ही हम उम्र होने के बावजूद मुझे अंकल कहकर बुलाती हैं। मुझे उसका अंकल कहकर बुलाना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड था कि ड्राइवर को हर कोई अंकल ही कहकर बुलाता था। इसीलिए मुझे उन बच्चियों का अंकल कहकर बुलाना भी बुरा नहीं लगता था। मैं बड़ी बीबी और छोटी बीबी को छोड़कर वापस आया और कुछ देर के लिए अपने क्वार्टर में सोने के लिए चला गया। अम्मा ने मालकन से मेरी शादी के बारे में बात की थी। मालकन ने अम्मा से मेरी शादी के अखराजात उठाने का वादा किया। अम्मा बेहद खुश थी। मैं अम्मा की बात सुनते सुनते सो गया था। थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद मैं उठा और बड़ी बीबी और छोटी बीबी को लेने के लिए चला गया। छोटी बीबी ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था, जबकि बड़ी बीबी की पढ़ाई मुकम्मल होने पर थी। अब छोटी बीबी को भी मालिक ने कॉलेज में दाखिला लेकर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बड़ी बीबी के रिश्ते आने शुरू हुए। मालिक ने बहुत अच्छी जगह देखकर बड़ी बीबी का रिश्ता तय कर दिया था। इधर से बड़ी बीबी की शादी की तैयारियां शुरू थी और बीबी की शादी के फौरन बाद मेरी शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी। मैं बुरी तरह से शादी की तैयारियों में फंसा हुआ था। बड़ी बीबी के साथ साथ मुझे अपने घर की भी सारी तैयारियों को देखना पड़ रहा था। मालकन के साथ मेरा सारा दिन बाजार में ही गुजर जाता। शादी की शॉपिंग और बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मुझे बहुत थकावट हो गई थी। आखिरकार देखते ही देखते बड़ी बीबी की शादी का दिन भी आ गया। बड़ी बीबी दुल्हन बनी अपने पिया के घर चली गई थी। बड़ी बीबी की शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई थी, लेकिन मालकन का घर बहुत ही वीरान हो गया था। ऐसा लगता था कि बड़ी बीबी की गैर मौजूदगी में पूरा बंगला ही उदास हो गया था। अब मालकन की सारी तवज्जो छोटी बीबी पर थी। छोटी बीबी को कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया और मेरी जिम्मेदारी छोटी बीबी को कॉलेज छोड़ने और वापस एहतियात से घर लाने की थी। मैं छोटी बीबी को रोज़ाना कॉलेज छोड़ कर आता और फिर वक्त पर घर लेकर आता था। आज भी सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी की तरफ देखा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तभी मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटका। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी बीबी खड़ी थी, जो मुझसे गुस्से से कह रही थी कि अंकल आपने मुझे देर करवा दी है। मेरा आज कॉलेज में पहला दिन था और पहले दिन ही मैं देर से पहुंचूंगी। मैंने जल्दी से अपना जूता पहनते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको 2 मिनट में कॉलेज पहुंचा दूंगा। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और बीबी को अंदर बिठाते हुए कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ मैं सीधा कॉलेज पहुंच गया। छोटी बीबी ने मुझे ताकीद की कि अब वापसी पर मुझे लेना मत भूलिएगा, याद से मुझे वक्त पर कॉलेज से ले जाइएगा। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए गाड़ी वापस बंगले की तरफ मोड़ ली। घर आया तो अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी में भी 1 हफ्ता रह गया है, लिहाजा अब तुम थोड़ा अपनी शॉपिंग की तरफ भी ध्यान दो। फातिमा का सारा सामान लाना है और घर की कुछ चीज़ें लाने वाली हैं। आज मालकन मुझे पैसे देंगी तो सारा सामान भी खरीद लाएंगे। मैंने अम्मा से कहा कि जब तक मैं छोटी बीबी को कॉलेज से वापस नहीं ले आता मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। मैं अब बेसब्री से छोटी बीबी की छुट्टी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं 15 मिनट पहले ही कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही छोटी बीबी को छुट्टी हुई तो मैं छोटी बीबी को लेकर घर की तरफ जाने लगा। छोटी बीबी ने मार्केट में गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी मार्केट के बिल्कुल सामने जाकर रोकी। छोटी बीबी गाड़ी से निकलकर कुछ ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में चली गई। कुछ देर के इंतज़ार के बाद छोटी बीबी अपना सारा सामान लेकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई थी।
मैंने गाड़ी घर की तरफ मोड़ी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो अम्मा ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बेगम साहिबा से शॉपिंग के लिए पैसे ले आई थी। अब मुझे अम्मा को लेकर शॉपिंग के लिए बाजार जाना था। मैंने अम्मा से खाना मांगा और कहा कि खाना खाने के बाद मैं आपको बाजार ले जाता हूँ, पहले मुझे खाना दे दे, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैं खाना खाकर चाय पीने के बाद अम्मा को लेकर बाजार के लिए निकल गया। मैंने अम्मा से कहा कि आज ही सारी शॉपिंग कर ले, जो लेना है। आगे मुझे शॉपिंग के लिए परेशानी मत दीजिएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसीलिए जो खरीदना है आज ही खरीद लीजिएगा। मैं अम्मा को लेकर बाजार चला गया। अम्मा ने शादी की सारी शॉपिंग कर ली थी, अब सिर्फ बारात लेकर जाने का इंतज़ार था। जैसे ही मैं बाजार से घर पहुंचा तो अभी मैं गाड़ी से सामान ही निकाल रहा था, तब छोटी बीबी ने आकर मुझसे कहा कि आपको और खाला को मामा अंदर बुला रही हैं। मैं बहुत घबरा गया था कि अब शायद फिर मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर भेजना होगा। मैं मुंह लटकाए हुए अम्मा के साथ मालकन की बात सुनने के लिए बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो मालकन सामने बैठी मुस्कुरा रही थी और मुझसे कहने लगी कि क्या क्या खरीद कर लाए हो हमारी बहू के लिए। मैंने मालकन से कहा कि पता नहीं, अम्मा ने ही शॉपिंग की है। मालकन मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि जो शॉपिंग तुम्हारी अम्मा करके आई हैं, क्या तुम वो मुझे नहीं दिखाओगे? मैं शर्माता हुआ अम्मा से कहने लगा। मालकन को भी सारी चीज़ें दिखाई। मैं बहुत थका हुआ था। मैं मालकन से इजाज़त लेकर सोने के लिए क्वार्टर में चला गया। अम्मा सारी शॉपिंग दिखाकर थोड़ी देर बाद क्वार्टर में आ गई थी। अम्मा ने आकर बताया कि मालकन हमारी शादी की सारी शॉपिंग देखकर बहुत खुश हुई हैं और बहुत दुआएं दे रही थी, और मालिक ने मुझे कहा है कि और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। ये कुछ पैसे मुझे दिए हैं कि मैं तुम्हें पकड़ा दूं, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो तुम्हारी जेब खाली ना हो। मैं और अम्मा मालिक और मालकन को बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगे, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं करता जिस तरह हमारे मालिक हमारा एहसास करते थे। अब अम्मा और मुझे उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन मैं दूल्हा बने फातिमा को ब्याहने के लिए जाता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं बारात लेकर गांव फातिमा को ब्याहने गया था। मेरे साथ मालिक और मालकन भी गए थे। मैं फातिमा को ब्याह कर घर ले आया था। फातिमा बहुत ही बाइख्लाक बीवी थी। मैं और फातिमा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फातिमा मेरे साथ बहुत खुश थी। फातिमा ने अम्मा की खिदमत करने में भी कोई कसर ना छोड़ी थी। अभी कुछ वक्त ही तो फातिमा को हुआ था हमारे पास आए हुए, और अम्मा ने बिस्तर पकड़ लिया था। फातिमा अम्मा की जगह बंगले पर काम करने भी जाती और अपने घर का भी सारा काम देखती थी। मैंने फातिमा को कह दिया था कि अगर उसका इरादा काम करने का नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं मालकन से खुद बात कर लूँगा। लेकिन मालकन ने फातिमा को इज्जत और प्यार ही इतना दिया था कि फातिमा का दिल ही नहीं करता था कि मालकन को किसी भी काम से इनकार किया जाए। इसलिए फातिमा ने अम्मा की जगह पूरे बंगले का काम संभाल लिया। एक दिन मैं मालकन के किसी काम से बाजार गया हुआ था कि जब मुझे फातिमा की कॉल आई। फातिमा बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बेहद परेशान हुआ और फातिमा से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। फातिमा ने बताया कि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने फ़ौरन से पहले घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं और फातिमा अब इस क्वार्टर में अकेले ही रहते थे। फातिमा को अम्मा की जगह पर बंगले में काम तो मिल गया था। मालकन फातिमा से खुश भी बेहद थी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा रहा था। बड़ी बीबी अक्सर ही मालकन से मिलने घर आती तो फातिमा अच्छे अच्छे खाने बनाकर बड़ी बीबी को खिलाती। उनके खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ती थी। बड़ी बीबी भी फातिमा को बहुत पसंद करने लगी थी और अक्सर फातिमा के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आती थी। इस घर में मुझे और फातिमा को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि हम उनके नौकर हैं। मालिक और मालकन ने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह ही समझा था। फातिमा यहाँ आकर बहुत खुश थी।
हमारी शादी को अभी कुछ ही माह हुए थे कि एक दिन अचानक फातिमा की तबीयत खराब हो गई। मालिक ने मुझे फातिमा को डॉक्टर पर ले जाने का हुक्म दिया और साथ कुछ पैसे भी दिए कि मैं फातिमा का अच्छे तरीके से चेकअप कराऊं। जैसे ही मैं फातिमा को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर जाते ही फातिमा का चेकअप करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने रूम में वापस आई तो खुश होकर मुझसे कहने लगी, आपको मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। मुझे डॉक्टर के मुंह से ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई थी। फातिमा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और फातिमा को लेकर घर वापस आ गया। मैंने ये खुशखबरी मालकन को सुनाई तो मालकन भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझसे कहने लगी कि फातिमा का आप पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना। ऐसी हालत में औरत को मर्द की तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। अब तुम्हारा ख्याल ही उसके लिए सबसे बड़ी दवा है। मालकन ने फातिमा से बड़ी बीबी के लिए भी दुआ करने को कहा था। बड़ी बीबी की शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो औलाद की खुशी से महरूम थी। फातिमा उठते बैठते ऐसी हालत में बड़ी बीबी के लिए भी बहुत दुआ करती थी। आज बड़ी बेगम ने मुझे बंगले में बुलाया था। मैं उनकी बात सुनने के लिए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी बेगम अपने कमरे में थी। मैंने फातिमा से कहा कि ज़रा बड़ी बेगम को बताओ कि कामरान बुला रहे हैं। फातिमा ने बड़ी बेगम को बुलाया तो बड़ी बेगम ने मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा। मैं जैसे ही बड़ी बेगम के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मालकन मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम छोटे होते से हमारे हाथों में ही पले हो, इसीलिए मैं अपना बेटा समझकर तुमसे ये बात करने लगी हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। मैं सर झुकाए मालकन के सामने खड़ा था। मैं परेशान था कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई है जो मालकन इस कदर परेशान होकर मुझे बुलाने पर मजबूर हो गई थी। मालकन ने बताया कि तुम्हारे मालिक बैरून मुल्क जा रहे हैं और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे तुम्हारी छोटी बीबी की फिक्र खाए जा रही है। मैंने तुमसे यही कहना था कि छोटी बीबी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि छोटी शोख चंचल सी है, इसीलिए वो बहुत जल्द हर एक को अपना दोस्त मान लेती है। हालांकि इस दुनिया में हर किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। मुझे छोटी की फिक्र लगी रहती है कि वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए, इसीलिए मैंने तुमसे कहना था कि उसका बहुत ख्याल रखना और जहाँ भी जाए उसके साथ ही जाना। मैं मालकन की ये बात सुनकर बेहद परेशान हो गया था। मैंने मालकन से वादा किया कि आप परेशान मत हो। मैंने इस घर का नमक खाया है। आपके घर की इज्जत मेरी इज्जत है। छोटी बीबी मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं कभी भी इस घर की इज्जत पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, छोटी बीबी को कुछ भी नहीं होगा। मालकन मुझसे बात करके बहुत मुतमईन थी। मैंने मालकन से इजाज़त ली और अपने कमरे में वापस चला आया। मैं मुसलसल छोटी बीबी के बारे में सोच रहा था। न जाने ऐसी कौन सी बात हुई थी जो मालकन इस कदर परेशान थी। मालकन ने मुझे इस कदर बीबी पर नज़र रखने के लिए क्यों पाबंद कर दिया? ये सवाल मुझे परेशान किए जा रहा था कि तभी अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और मैंने फातिमा को घर के अंदर दाखिल होते देखा। मैंने फातिमा से पूछा कि क्या बंगले में कोई बात हुई है? फातिमा खामोश रही। मेरे पूछने पर फातिमा ने मुझे बताया कि छोटी बीबी शायद किसी को पसंद करती हैं और ये बात मालकन को पता चल गई है, इसीलिए मालकन ने अब आपको छोटी बीबी पर नज़र रखने के लिए कहा है। मैंने फातिमा से कहा कि अगर छोटी बीबी किसी को पसंद करती हैं तो मालकन को चाहिए कि देखकर उसका रिश्ता कर दें। ज़िंदगी तो छोटी बीबी ने ही गुजारनी है। लेकिन फातिमा ने मुझे बताया कि वो लड़का अय्याश और लोफर सा है और बहुत ही लो स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ रखता है। मैं फातिमा की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। मुझे ये भी परेशानी खाए जा रही थी कि इतनी इज्जतदार फैमिली है तो छोटी बीबी किन चक्रों में पड़ गई हैं। बहरहाल मैंने मालकन से वादा किया था, इसीलिए मैं मुसलसल छोटी बीबी पर नज़र रखने लगा। मैं छोटी बीबी को कॉलेज छोड़ कर आता
और वक्त से पहले ही कॉलेज के सामने जाकर खड़ा होता ताकि छोटी बीबी को वक्त पर वापस घर भी ले आऊं। मैं पहले से ज़्यादा वक्त का पाबंद हो गया था। मैंने अक्सर छोटी बीबी को किसी के साथ फ़ोन पर सरगोशी में बातें करते सुना था, लेकिन मैं हमेशा इस बात को इसलिए इग्नोर कर देता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं छोटी बीबी के घर में शिकायत लगाऊं। मैं किस मुंह से छोटी बीबी की शिकायत मालकन से करूं? ये बड़े लोग थे और मैं अपनी औकात से बढ़कर कोई भी काम नहीं करना चाहता था, और ना ही मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसी की थी कि मैं अपने मालिक के साथ कोई भी ऐसी बात करता जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। क्या पता मालकन मेरे मुंह से कोई बात सुनकर बर्दाश्त करती या नहीं। यही सोचकर मैं हमेशा खामोश हो जाता था। मालकन की छोटी बेटी खूबसूरत और जवान थी। छोटी बीबी इस कदर खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता। इस कदर हसीन जैसे चांद का टुकड़ा। ऐसी लड़की पर तो कोई भी डोरें डाल सकता था। एक दिन मैं छोटी बीबी को कॉलेज छोड़ने गया तो मैंने गाड़ी में बैठते छोटी बीबी को किसी से बात करते सुना था। मैंने बहुत गौर किया लेकिन मुझे सारी बात समझ नहीं आ रही थी। छोटी बीबी के अंदाज़े गुफ्तगू से इतना तो समझ ही गया था कि छोटी बीबी किसी लड़के को किसी जगह जाने का कह रही थी। मैं छोटी बीबी की बातें सुनकर बेहद परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मालकन को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए मैंने छोटी बीबी को कॉलेज छोड़ते हुए कॉलेज के पास ही छुट्टी होने का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहीं पर रुकूंगा ताकि छोटी बीबी पर नज़र रख सकूं। छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी था जब मुझे फातिमा की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि मालकन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने फ़ौरन से पहले घर जाने की। मैं डॉक्टर को लेते हुए ही घर गया था। डॉक्टर ने मालकन का चेकअप किया और मुझे बताया कि मालकन का बीपी तेज़ हो गया था, इसीलिए उन्हें सुकून की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन देकर मालकन को सुला दिया। मैंने फातिमा से कहा कि मुझे देर हो रही है तो मालकन का ख्याल रखना, मैं जल्दी से छोटी बीबी को कॉलेज से ले आऊं। मैं वापस कॉलेज के लिए निकला। कॉलेज में छुट्टी होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। मैं गेट के बाहर छोटी बीबी का इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट बाद कॉलेज का गेट खुला और सारी बच्चियां गेट से बाहर आती दिखाई देने लगी। मेरी नज़र छोटी बीबी को तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे दूर तक कहीं भी छोटी बीबी आती दिखाई नहीं दे रही थी। काफ़ी देर तक मैं छोटी बीबी के इंतज़ार में गेट के बाहर ही खड़ा रहा। मैंने छोटी बीबी को बाहर आते ना देखा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। दिल में ये सोच रहा था कि मैं मालकन को कैसे बताऊंगा कि छोटी बीबी कॉलेज में नहीं है। उनका तो पहले ही बीपी बहुत तेज था। मेरी बात सुनकर तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाती। यही सोचते हुए मैं वहाँ छोटी बीबी का इंतज़ार करता रहा। मैं छोटी बीबी का इंतज़ार करते करते थक गया था। मैं वापस ही जाने वाला था कि मुझे छोटी बीबी आती दिखाई दी। मैं छोटी बीबी को देखकर बेहद हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि छोटी बीबी पैदल नहीं आ रही थी, किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पहले मैंने सोचा कि कॉलेज के सामने से ही मोटरसाइकिल वाले को रोक लूं और उसकी अच्छी धुलाई करूं और छोटी बीबी को लेकर घर चला जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे छोटी बीबी का पूरे कॉलेज के सामने तमाशा बन जाएगा। बेहतरी इसी में थी कि मैं खामोशी से मोटरसाइकिल का पीछा करता और देखता कि आखिर ये दोनों जा कहाँ रहे हैं। मैंने ऐसा ही किया। मैं चोरी छुपे मोटरसाइकिल का पीछा करता जा रहा था। मोटरसाइकिल पर बैठा लड़का तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल को वीरान जगह की तरफ ले जाता दिखाई दिया। मैं भी खामोशी से उसके पीछे जाने लगा। आखिरकार एक वीरान जगह पर जाकर मोटरसाइकिल रुकी। मैंने भी अपनी गाड़ी कुछ फासले पर रोक ली और गाड़ी से उतरकर पैदल उसके पीछे चलने लगा। छोटी बीबी और वो लड़का उतरकर झाड़ियों के पीछे जाते दिखाई दिए। मैं भी आहिस्ता कदम उनके पीछे चलता हुआ झाड़ियों की तरफ जाने लगा।
तभी मैं चुपके से उनका पीछा करते हुए गया तो ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि झाड़ियों के पीछे छोटी बीबी और वो लड़का एक थैला लिए खड़े थे। छोटी बीबी और वो लड़का थैले में से कुछ किताबें निकाल रहे थे और कुछ सामान था जिसे घास पर बिछाए कपड़े के ऊपर रख रहे थे। देखते ही देखते मुझे इस बात की समझ आ गई कि छोटी बीबी और वो लड़का कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे और प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था। छोटी बीबी और वो लड़का किताबें खोले अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। वो लड़का छोटी बीबी को आप ही कहकर बुला रहा था। उनकी बातों से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये लोग किसी गलत इरादे से यहाँ आए हैं। मैं खामोशी से उन दोनों की बातें सुनता रहा और अब मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जब छोटी बीबी को पता चलेगा कि मैंने उन पर शक करते हुए उनका पीछा किया है तो वो मेरा क्या हशर करेंगी। छोटी बीबी तो गुस्से की भी बहुत तेज थी। यही सोचते हुए मैं घबरा रहा था कि तभी छोटी बीबी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और मुझसे पूछने लगी, कामरान अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने छोटी बीबी को बताया कि मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उन्हें डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद आपको कॉलेज लेने आया था, लेकिन आप काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी जब मुझे नज़र ना आई तो मैं वापस जाने लगा कि तभी मेरी नज़र आप पर पड़ी। आप इस लड़के के साथ बाइक पर सवार थीं, जिसकी वजह से मैं आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। छोटी बीबी मेरी हरकत पर थोड़ा गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगी कि चुपके से पीछा करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए यहाँ आए थे। मैंने छोटी बीबी से कहा कि अगर आप यही बात मुझे बता देती तो मेरे दिल में भी किसी किस्म का कोई शक पैदा ना होता। छोटी बीबी ने अपनी गलती मानी और मुझसे कहा कि वाकई मुझे आपको सच बता देना चाहिए था। मैंने छोटी बीबी से कहा कि कोई बात नहीं, अब आप लोग अपना काम पूरा कर लें जिस काम के लिए आप यहाँ आई थी। छोटी बीबी ने मालकन की तबीयत के बारे में पूछते हुए कहा कि मैं ये काम कल या परसों कर लूँगी, अभी मेरा मामा के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने छोटी बीबी को बताया कि आप परेशान मत हों, मालकन दवाई खाकर गहरी नींद सोई हुई हैं, आप अपना काम निपटा लें तो हम इकट्ठे घर चलते हैं। छोटी बीबी ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और फिर उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे साथ गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में छोटी बीबी ने मुझसे पूछा कि आपको मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा था? मैंने छोटी बीबी से कहा कि किसी ने भी नहीं कहा, बस मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मालिक भी पाकिस्तान में नहीं है और मालकन की तबीयत भी आए दिन ख़राब रहती है। आपकी उम्र की लड़कियां अक्सर गलत लोगों के हाथों का शिकार बन जाती हैं, इसीलिए मैं अपने तौर पर आपकी हिफाजत कर रहा था और ये मेरी जिम्मेदारी भी थी क्योंकि मालकन और मालिक ने आपको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी मेरी लगा रखी थी और मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आपकी हर हरकत पर नज़र रखूं। छोटी बीबी ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे मेरे माँ बाप की गर्दन झुके। बातें करते करते हम घर पहुँच गए। मालकन ने छोटी बीबी से लेट आने की वजह पूछी तो छोटी बीबी ने बताया कि मैं अपने क्लास फेलो के साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए गई हुई थी। छोटी बीबी ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक लड़के को पसंद ज़रूर करती थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों को पीछे छोड़कर कभी भी कोई गलत कदम उठाऊंगी। इसलिए आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। मेरे लिए सबसे पहले आपकी इज़्ज़त है और उसके बाद अपनी खुशियाँ। मालकन छोटी बीबी को सीने से लगाकर खुश हो गई और कहने लगी, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। मैं माँ बेटी का प्यार देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि औलाद अच्छी हो तो माँ बाप के लिए पूरी ज़िंदगी का सुकून बन जाती है, लेकिन अगर कहीं औलाद बुरी निकले तो माँ बाप की रातों की नींदें उड़ा देती हैं।